یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور خاص کر جب میں اس طرح کے نوجوانان کو دیکھتا ہوں تو خوشی اس لیے بھی ہوتی ہے اور حوصلہ اس لیے بھی بہت بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا کہ جی آج کل کا نوجوان کو اسے اپنی فکر نہیں ہے تو کہاں وہ کسی اور کی فکر کرے. اسے اپنے گھر کی فکر بھی وہ بالکل ایک عجیب طبیعت کا مالک ہوتا ہے, بے غم اور بے فکری کی ایک اس کی زندگی ہوتی ہے. اور عین اس جوانی کے دور میں اگر وہ اپنا گیان اپنے رشتہ دار کیا ایک ایسے بچوں کی فکر شروع کر دیتا ہے کہ جن کو اس نے نہ دیکھا ہے, جن کے ساتھ وہ اس کا رشتہ ہے, خونی رشتہ ہے, اور وہ ان کی ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے, تو یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی پازیٹیوٹی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے. اور اس سے ہمیں پھر ایک نیا حوصلہ ملتا ہے. ہم خود یعنی آپ تو آگے چلے جائیں گے لیکن آپ کی اس وزٹ ہمیں ایک اور جو ہے تو وہ جذبہ دے دے گی اور پھر ہم ایک اور نئے عزم سے میدان میں کود پڑتے ہیں. میں اکثر چونکہ ہم بھی انسان ہیں اگر کوئی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو میں نے آپشنس کے حوالے سے کچھ چیزیں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں. عربی میں بھی ہیں, نشید سے انگلش میں بھی ہیں اور کچھ ڈاکومنٹریز بھی ہیں. تو جس وقت میں دیکھتا ہوں کہ میں کچھ کمزور پڑھنا شروع کروں تو میں پھر فوراً موڑ لگا دیتا ہوں پڑھائی میں اور پھر اس سے ایک نئی چیز کرنا چلا پھر ایک نیا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے, نئی اصل سے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ آئے ہیں. دیکھیے یتیم کی کفالت کرنے والا اس کے لیے بہت خوشخبری ہے, بہت خوشخبری ہے. آپ کو آپ کے سر بھی بتاتے رہتے ہوں گے کھڑا ہو کر, یہاں تک کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جی وہ قیامت والے دن جنت والے دن ایسے ہوگا, یہ دو انگلیاں جس طرح ان میں قربت ہے اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جو ہوں ہمارے درمیان یہ قربت ہوگی. اتنی بڑی خوش قسمتی اور صرف اس کے سر پہ آپ دست شفقت رکھتے ہیں تو جتنی بال ہے اتنی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں. اور دنیا میں اس گھر کو سب سے بہترین گھر قرار دے دیا گیا جس میں اس کی تربیت ہو رہی ہو اچھے انداز سے. تو یہ ساری خوشخبری اس لیے ہے, آپ میرے بھائی ہیں, بچوں کی طرح ہیں کہ جی جب ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے نا, اللہ کسی کو بھی اس آزمائش سے نہیں گزارے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک سسٹم ہے, اس نے ترتیب ہے, تو اس میں بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. ایک شفقت سے سرپرستی سے شفقت سے بھی اور سرپرستی سے بھی وہ کیا ہو جاتا ہے, محروم ہو جاتا ہے. جب محروم ہو جاتا ہے تو پھر گہرے معاشرے کے پہ جب چڑھتا ہے تو پھر یہ معاشرہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جب وہ برے سلوک کے ساتھ بھی یتیم بچہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ بے رحم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے رحم نہیں دیکھا, اس لیے کہ اس نے محبت نہیں دیکھی. تو اس کے نتیجے میں اب اس کے اندر بھی کوئی رحم نہیں ہے اور اس کے اندر بھی کوئی محبت نہیں ہے اور اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو پھر آج معاشرے میں اس کو دھکارا اور کل وہ معاشرے کے لیے ناسور ہو گیا. ایسی کئی مثالیں ہم اپنے محلے میں دیکھتے ہیں, اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ آج وہ نوجوان جس سے پورا محلہ تنگ ہے, پوری بستی تنگ ہے, کسی دور میں بستی نے اس کو بری طرح بےرحمی کا سلوک کیا. تو اس لیے اسلام ہمیں پھر کسی چیز کا درس دیتا ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ اس یتیم بچے پہ بھی آزمائش ہے لیکن اس سے بڑھ کے یہ آپ کی اور میری اور معاشرے کی آزمائش ہوتی کہ جی ہم پھر کیا کرتے ہیں. ہمارا رول پھر یہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آیا ہم نیوٹرل ہیں, بالکل بے پرواہ ہیں, آیا ہمارا نیگیٹو رول ہے, آیا ہمارا پازیٹیو. تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے جی, اپنے حصے کا کام کرنا ہے. کچھ خار تو کم کر کے پورے جدھر سے ہم بس یہ اپنے حصے کے خاص چنتے ہم نے اور جہاں سے بھی ہمیں ایسے بچے ہوں ان کے دست شفقت, ان کے ساتھ محبت کا اظہار, ان کے ساتھ میں اپنے بچوں کو یہی سمجھاتا ہوتا ہوں کہ دیکھو بچوں آپ کے ساتھ کتنی دور دور سے لوگ محبت کرنے آ رہے ہیں, محبت کا اظہار کرنے. یہ وہ بچے ہیں جنہیں جو ہر ایک کسی نہ کسی آزمائش سے گزر کے آیا ہے. یہ 216 بچے مینس 216 کہانیاں ہیں ہمارے پاس, یہ درد بھری کہانیاں ہیں اور آزمائش بھری کہانیاں ہیں. لیکن جب آپ جیسے لوگ آتے ہیں محبت
मोहब्बतें बांटते हैं, तो इनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो आम माशरे में अब एक बच्चे के अंदर नेगेटिव जो तासर दिखाया जाता है, क्योंकि इन्होंने अब मोहब्बत देखी है, इन्होंने एक शफकत देखी है, और एक देखते हैं ये कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इनके साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। वो मैं ये नहीं कहता कि जिन्स की सूरत में, लेकिन ये जिन्स की जो है ये इसकी अहमियत अपनी जगह है एक बहुत बड़ी, लेकिन ये जो मोहब्बत और खुलूस और प्यार है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अंदर इनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। वो एक छोटा सा बच्चा है, वो भी है, चाचू भी है, ठीक है, दिल भी बड़ा टूटा अंदर से, लेकिन साथ खुशी भी होती है कि यार शुक्र है आपने हमें इतनी हिम्मत तो दी कि हमें भी बच्चों के कुछ बन रहे हैं और ये बच्चे हमें कुछ अपना समझ भी रहे हैं। वो मेरे घर में गया, फिर मुझे आके कहता है कि मैं अपनी अम्मी से भी मिला हूँ। मैंने कहा किधर? वो मुझे कहता है मेरी बेगम, कहता है वो जो आपकी अम्मी है वो मेरी अम्मी भी है, मैं उनसे मिल के आया। तो उसकी ये बात भी मुझे वो बड़ी लगी, लेकिन ये कि लेकिन हम कितना कर सकते हैं, ठीक है, 216 बच्चे हैं, हम कितना करेंगे। लेकिन जब आप ऐसे लोग साथ शरीक हो जाते हैं और हाथ बटाते हैं हमारा, तो उससे हौसला मिलता है, खुशी मिलती है। ये उनकी अलमारियाँ हैं, बाकी तो शबीर साहब हमें गाइड कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये हमने ज़्यादातर सिस्टम जो है एक वो इस तरह रखा हुआ है कि जी ग्रीन ऑफ वर्क है, बच्चे सारे काम करते हैं, ठीक है। उनकी अब हर कमरा है, यहाँ अगर 8 बच्चे हैं तो इस कमरे का एक नाज़िम है या सदर कहते हैं या बीवी कहते हैं, जो भी इसको कहते हैं। कमरे के अंदर की सफाई, कमरे को मेंटेन रखना ये बच्चों की अपनी जिम्मेदारी, ये उनकी जिम्मेदारी। ये सुबह जाते हुए ये अपना कमरा पूरा सेट करके जाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसका ये होता है कि कमरे का जो नाज़िम है वो कह देगा कि आज आपकी बारी है, इसकी बारी है, इसकी बारी, वो सबकी बारी है, वो लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं, वो उसकी अपनी बारी भी है और बाकी सबकी भी बारी है, ठीक है। तो वो कमरा मेंटेन रखना, कमरे को सेट रखना, उसकी सफाई, या उसके अंदर कोई ज़रूरत है तो ज़रूरत आके हमें बताना है, उस कमरे के नाज़िम की जिम्मेदारी है। इसी तरह बाकी जितना भी हमारी तरफ से जो हदायत होती है उन पे अमल कराना और करना, ये इस कमरे के नाज़िम की जिम्मेदारी है कि वो बाकी सारे बच्चों को भी अपने साथ शरीक करेगा। तो इस तरह हर काम जो है वो तकसीम है, एक कमरे का नाज़िम है, फिर इसी तरह पूरे हॉस्टल का एक नाज़िम है, ठीक है जी, फिर इसी तरह पूरे का हॉस्टल की डिसिप्लिन कमेटी है, फिर मेस के जिम्मेदारान हैं, मेस कमेटी है जो मेस का निज़ाम को चलाती है, और फिर इसी तरह सलाद कमेटी है जो नमाज के निज़ाम को चलाती है, और यानी स्पोर्ट्स कमेटी है जिसका काम स्पोर्ट्स के मामलात को चलाना है। तो ये सारे मामलात बच्चों के अपने, इसी तरह सेहत के मामलात हैं तो वो भी एक बच्चों की एक टीम है जो उसको डील करती है, ठीक है। बच्चों के हमारे पास पैनल में डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर सारे 16 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, और अंदाजा लगाइए वो सारे वॉलंटियरली क्लिनिक्स पे अपने हमारे बच्चों को देखते हैं, तो उन तक पहुंचाना वो सारा वो एक कमेटी करती है। तो हम इस लिहाज से बहुत रिलैक्स हैं, वो बहुत टेंस भी है लेकिन बहुत रिलैक्स भी है। हाँ जी, ये बच्चे अगर आप देख लें तो ये उनको एक लगाया गया है ताकि ये देखते रहें, और इनसे जनाब वो ग्रूमिंग होती है बच्चों की कि जी मैंने दुआ पढ़नी है सुबह, एक तरतीब बेटा जो है डेवलप हो जाता है। ठीक है बेटा, आ जाए बेटा। इंडोर गेम्स के लिए ये जगह इस्तेमाल होती है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, या कोई फंक्शन है, जैसे अभी हमने एक इंटर स्कूल्स कंपटीशन कराया और वो भी आपकी कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट जो है उनके तावन से, तो 9 स्कूलों ने हिस्सा लिया। तो कुछ छोटा मोटा इंडोर फंक्शन है तो वो भी हम यहीं पे करते हैं, इसी जगह पे। हाँ जी, ये है ऊपर बिठा दिया, टेबल पे बिठा दिया, और पखे भी हैं, पखे भी नहीं।
से है आज मेन्यू में क्या है जी? चिकन। हाँ आज चिकन है मेन्यू में, तो वो शाम को लोग किया। बेटा ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखें। अच्छा ये आप देख रहे हैं बेटा, इनका ये हाँ ये अगर वहाँ पे मेन्यू में लिखा होगा तो यहाँ पे ये पता होगा, और ये रात के खाने के लिए तैयार। कमेटी है वो खाना लगवाती है यहाँ पे, मेस कमेटी लगाती नहीं है, लगवाती है। लगवाने का तरीका भी ये है कि जो मेस कमेटी आज ऐलान कर देगी कि जी आज कमरा नंबर 1 खाना लगाएगा, कमरा नंबर 1 आ जाएगा और उन्होंने जनाब खाना लगा डिसिप्लिन बेटा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं होगी। जब वो कहेगा कि कमरा नंबर 1 में आना है तो वही आएगा। और अंडरस्टूड बात है कि नेक्स्ट डे कमरा नंबर 2 की बारी है, ठीक है, वो सिर्फ ऊपर ऐलान कर देंगे कि कमरा नंबर 2 और कमरा नंबर 2 पर आ जाएगा, यहाँ खाना लग जाएगा। खाना लगने के बाद फिर घंटी बज जाती है और सारे बच्चे अपनी अपनी टेबल के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद, खाने के दौरान सेल्फ सर्विस स्टार्ट हो जाती है, मतलब खाना और मज़ीद ज़रूरत पड़ गया तो वो उठ जाएगा बच्चा और वहाँ से रिसीव करेगा। और खाना खाने के बाद बर्तन उठा के वहाँ तक पहुँचाना ये भी बच्चों की जिम्मेदारी है। और फिर यहीं पे फिर कमरे के एक मिनट ज़रा एक सेकंड ज़रा, फिर यहीं पे कमरे का जो नाज़िम है उसका एक और फंक्शन ये है कि वो कहेगा कि जी आज टेबल की सफाई आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर वो बच्चा टेबल की सफाई और नीचे अगर कुछ वो सब साफ़ कर देगा, ठीक है। तो मतलब अभी डाइनिंग हॉल साफ़ है, खाने के बाद अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो विद इन 5 मिनट्स ये वापस अपनी पोजीशन। आगे ना आगे। अच्छा ये बच्चे आ गए, वो आगे बच्चे हैं। क्या डरा रहा है कि मुझसे? ये बच्चे को परेशान कर रहा है। क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है आपका? हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कहाँ से आए हो? सही है, फिट है यहाँ पे, सही से सब कुछ बेहतरीन है, किसी चीज़ की कमी वगैरह? हाँ, किसी की याद वगैरह तो नहीं आती है? क्या डरे हुए? अभी ये डरा हुआ लग रहा है। अभी क्या कर रहे थे? स्कूल की छुट्टी होगी? छुट्टी होगी? खाना खाना खाए? कितना टाइम? अभी चेंज कर रहे हैं ना बच्चे खाना शाना। आपके कमरे का यार नाजिम साहब आपने बहुत अच्छी सफाई रखवाई। आप नाजिम है कमरे के? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। माशाल्लाह यार काफ़ी साफ कमरा रखवाया हुआ है। वो आगे आगे अभी कंप्यूटर लैब देखिए, कंप्यूटर लैब। और जल्दी ये पानी पानी वो
एक कंप्यूटर लैब दिखाओ, कंप्यूटर लैब और पक्का भी चल रहा, एक मिनट में जैसे पूरा अगर आपको फिर बाद में जरूरत हो तो आप मजा तो कम और लिलियां लिले ولا بالله اللهم افتح لي أبواب برحمتك. मैं छोटे बच्चों को ना जाना है. कुरान क्लासेस की मतलब कुरान क्लासेस के लिए हमने यहाँ के इस ब्लॉक के बच्चों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया. 2 ग्रुप्स की कुरान क्लासेस यहाँ पर होती है, तीसरे ग्रुप की कमरे में. कुरान क्लासेस भी 2 टाइम होती है, एक सुबह नमाज फजर के बाद और दूसरी नमाज ज़ोहर के बाद. अभी ज़ोहर के बाद इनकी जो है तरतीब होगी अभी आगे है, तो अभी ये जनाब खाना इनका बस मेस कमेटी नहीं, अब मेस कमेटी अपना काम शुरू करने वाली होगी. तो खाना खा के नमाज के बाद कुरान क्लास है, कुरान क्लास के बाद फिर रेस्ट है. हाँ, जिनका कंप्यूटर क्लास है तो वो कंप्यूटर के पीरियड में चले जाते हैं लैब में, और बाकी अपना रेस्ट करते हैं असर की नमाज तक. फिर असर की नमाज के बाद स्पोर्ट्स है, और फिर मगरिब के बाद होमवर्क है, और इशा के बाद सेल्फ स्टडी. आगोश को 2 आगोश को 10 आगोश को 20 आगोशों से ये काम नहीं बहुत बड़े काम में जरूरत है. लेकिन बात तो यही है कि जितना मुश्किल है जितना हमने करना है. इसी तरह जब हमने ये शुरू किया स्कॉलरशिप का सिलसिला जी आगोश से हट के जो बच्चे हैं तो मुश्किल से वो दे पाए. ये अपने गांव से हमारे लिए तोहफा लेके आया, मोहब्बत भरा. ये उसकी मोहब्बत है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोहब्बत है. उसके गांव में ये सब पौधा है, इस तरह के ये उसकी अम्मी की भी मोहब्बत है कि टोकरी और टोकरी के ऊपर रुमाल, और ये उसकी वो दिल से सिलाई करके, और वो बच्चा अच्छा बच्चों को ये पता नहीं है ना कि नहीं इस तरह वो बाहर खुद 15-20 मिनट खड़ा रहा है ये कि मैं कैसे जाके कहूँ कि जी ये हमारी तरफ से. फिर एक बहुत शरारती सा बच्चा है, बहुत जरा लाडला भी है, शरारती से कहा मुझे दो इधर, मैं दे क्या वीडियो बनाई वाले इन लोगों का दिलों वाले तो लाया इस मना रही तबारक रब्बना मतारी अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला मा क़दैत व लकल शुक्र अला मा अतैत नस्तगफिरुक अल्लाहुम्मा मिन जमीइज़ ज़ुनूबि वल ख़ताया व नतूबु इलैक.
لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا آمين آمين يا رب العالمين.